سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کریں گے کہ یہ جی پھر کہا جائے گا بڑا فرینڈلی بجٹ دے رہے ہیں، اور یہ شروع ہو چکا ہوا ہے سننے میں فرینڈلی، اور اصل میں فرینڈلی ہوتا نہیں، لیکن الفاظ کا گورکھ دھندا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد میں جھٹکے لگتے ہیں، نتائج کھل جاتا ہے وہ گورکھ دھندا. اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہم پاکستانی بیٹھ کے ٹی وی پہ انتظار کرتے تھے کہ بجٹ آ رہا ہے اور اس میں پورے سال کا جو بھی قیمتیں بڑھنی ہیں یا تنخواہیں بڑھنی ہیں یا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو جائے گا اور پھر ہم پورا سال اسی طرح گزاریں گے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تو یہ ہے کہ ہم ہر 15 دن کے بعد، جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ ہم ہر 15 دن کے بعد ایک منی بجٹ دیکھتے ہیں. جب فیول کی پرائسز، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتی ہیں کہ ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہر کسی کو ہم ایک منی بجٹ تو ہر مہینے ہم ایک اس کا یعنی اس کا ہم آفٹر افیکٹس بھی آتے رہتے ہیں اور ہر مہینے نئے سے نئے ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اگر کوئی کبھی کسی مہینے کوئی 2 4 10 5 روپے ڈیزل پیٹرول کم ہوتا ہے تو جو پرائسز اوپر جا چکی ہوتی ہیں وہ کم نہیں کرتا کوئی بھی. اور گورنمنٹ بھی اس چیز پہ نہیں ایمفیسائز کرتی کہ اگر پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں تو اس سے کرائے بھی کم ہو اور وہ ظاہر ہے اس سے یہ ہوگا کہ پھر کموڈٹی کم ہوں گی نا. لیکن یہ ہے کہ جو پرائس بڑھ جاتی ہے وہ بڑھی رہتی ہے. اور جس طرح ابھی یہ جو بجٹ ہے یہ تو بجٹ وہی پھر ایک نیا وہی جیسے آپ نے فرمایا رہا ہے گورکھ دھندا ہوگا کہ اس میں مختلف ہمیں کیلکولیشن کے ساتھ بتایا جائے گا کہ ہم اس کو یہاں سے کم کر رہے ہیں یہاں سے کم کر رہے ہیں. لیکن وہ اینڈ پہ یہی پتہ چلے گا کہ پرائسز تو چیزوں کی پھر بڑھ گئی ہیں. تو اس لیے اب جو حالات ہیں جیسے IMF کا پریشر ہے اور جیسے کہا جا رہا ہے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ براہ راست انہوں نے اپنے تجاویز بھی دی ہیں اور ان پہ عمل بھی کروایا ہے. تو اس میں ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ کوئی عوامی فرینڈلی بجٹ جیسے آپ ہیں کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہوگا، جو کہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ امپورٹ پہ جی ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں اور ایکسٹرا ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو اس میں امپورٹ گوڈز پہ اور خاص طور پہ امپورٹ کے جو فوڈ آئٹم ہیں جس میں آپ کا یہ ملک بھی شامل ہے اس پہ بھی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جس سے وہ جیسے آپ کہہ رہی تھی پرائسز پھر بڑھیں گی، چائے کی پرائس بڑھے گی. اچھا ابھی ہمارے یہاں فریش ملک تو ملتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا ہم پانی بھی خریدتے ہیں اپنے ملک میں، ہم لوگوں کو فریش ملک نہیں پیکٹ والا لیتے ہیں اور وہ بھی خالص نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی اس کے وجود میں جیسے ان سب سے جب ڈیوٹی بڑھیں گی تو ظاہر ہے پھر وہ پرائس بھی بڑھے گی، اور اسی طرح جب وہ پرائس بڑھے گی تو پھر ظاہر ہے باقی دودھ کی پرائس بھی ہر چیز کی بڑھ جائے گی. کو شامل کرتے ہیں ہمایوں سوچ سکتے ہیں تو پھر کیا کدھر جائے گا یہ دیکھیں نا آپ لوگ ہی پریڈکشن کر رہے ہو نا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ہماری جو مس مینجمنٹ ہے نا جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے نا. اب دیکھیں نا لاسٹ منتھ میں یا اس سے پہلے مہینے میں آپ نے 1 بلین قرض لیا IMF سے اور اتنے کی آپ نے گندم منگوا لی، حالانکہ گندم آپ کے پاس اپنی آ رہی تھی. تو گندم میں دیکھیں اچھا اظہر صاحب گندم میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس گندم میں گورکھ دھندا تھا کیا، کس کس کو فائدہ ہوا، کس نے کمایا؟ ان کو کسی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے جیب سے ہے. یعنی جتنے ہی امیر تھے آپ کی عوام دیکھیں ابھی شامی صاحب نے ملک کی حالت بتائی، آنے والے دنوں کا بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا عوام پر وہ کوئی نہیں سوچ رہا. لیکن یہ لوگ تو امیر سے امیر تر ہوتے، ڈالر بڑھے گا تو ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں، یہ لے کے جائیں گے کہ بے شک ڈالر بڑھے. IMF کے ساتھ مل کے جب یہ ڈالر بڑھائیں گے تو ان کے اکاؤنٹس ڈالر میں یہ ٹرپل امیر ہو جائیں گے. دیکھیں کیا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، کیا ہم جن لوگوں کے ہم نے قرضے معاف کیے ہیں ہاں وہ اتنے غریب تھے، کیا ان سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا نام مانو آپ نے کمائی کر لی، جو آپ کو ہم نے قرضے دیے تھے وہ تو واپس کر دو ہمیں، اب یہ تو لے لینا اوریجنل اماؤنٹ ہی ان سے لے لیں. ویسے انہیں پتہ ہوتا ہے قرضے لیتے وقت بھی کہ ہم معاف کروا لیں گے. تو پھر کیسز سارے معاف کروا لیں گے، قرضے معاف ہیں کہ ملک کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ملک کے ساتھ تو ہوگا ایسا ہی ہوگا. اور ابھی شامی صاحب نے بڑی خطرناک بات کی اور ہوگا. اظہر صاحب بجٹ یہ چیزیں تو آپ نے دیکھ لی کہ کیا کیا ہونے والا، اور اس میں نیا طوفان مہنگائی کا آنے کا امکان ہے. فوڈ آئٹمز مہنگے نہیں ہونے چاہیے، ہم بیفور ٹائم کہہ رہے ہیں. خدا کے لیے عوام کی بد دعائیں نہ لیں، بس کر دیں.
कम से कम रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़ें नहीं दे सकते, तो उसमें बच्चों का दूध और चीनी पत्ती और इतना तो आवाम को जीने दें। सूखा नान लेके, मैं नान इतने महंगे हो गए, कुछ तो ये नहीं रहम करें। इसमें आवाम बिजली में बहुत सारा टैक्स देती है, इसमें अनप्रोडक्टिव यूनिट्स का बोझ है, जिसमें रिटायर्ड अफसरान के इतना सारा बजट है, उनके ताहयात उतने उनको पैसे मिलने, सर्वेंट मिलने, बावर्ची मिलने, ड्राइवर मिलने, गाड़ी जी आप साथ लेके जाएं तो वो 6 महीने पहले अपनी कहते हैं पुरानी काम ही नहीं करी, बिल्कुल एक और अपनी पसंद की ले लेते हैं कि जब जाना ही है। तो पाकिस्तान के साथ तो किसी को हमदर्दी नहीं। ये कैसे ख़त्म किए जाएँ? फिर मैं इसमें शामिल करूँगी हुक्मरानों का प्रोटोकॉल, उसका बजट है वो मतलब अपने ज़ाती अकाउंट से जब ब्रांडेड जूते कपड़े पहनते हैं, सूट बूट, तो हम कहते हैं जी इन्होंने कमा इतना लिया है तो कमाएंगे तो फिर खाएंगे और लगाएंगे भी इतना, तो अपने ऊपर लगा रहे। लेकिन जहाँ हुकूमती खर्चात आते हैं वहाँ ये कम नहीं कर सकते। तो ये जो अनप्रोडक्टिव यूनिट्स, रिटायर्ड अफसरान का बोझ, VIP मूव प्रोटोकॉल, इसको किस अंदाज में काम करें कि खाली अवाम चाय के प्याली से भी जा रही है? देखें, एक तो आपने अभी जो फरमाया कि खाने पीने की अशिया महंगी होने का, देखें नहीं, हम तो अभी से कह रहे हैं और जुल्म ना करें। अगर तो देखें, अगर तो टैक्सेस गवर्नमेंट और लगाती है कि पहले ही महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उससे लोगों की, आप कह तो रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है, मैं इसको ये कहता हूँ कि लोगों की बाइंग पावर ही ख़त्म हो चुकी है। तो जाहिर है जब कोई चीज़, वही ना सप्लाई एंड डिमांड है ना, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों की, तो जाहिर है जब डिमांड ही नहीं है तो उसकी प्राइसेस तो कम होंगी ना। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि आप देख लेना, आप जिसको भी देखेंगी, जो भी देखें, उसकी कम से कम 30% से ज़्यादा उनकी बाइंग पावर इन पिछले कुछ अर्सा में कम हो चुकी है। और बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं, वो बेचारे क्या खरीदेंगे? अच्छा, रोजगार भी नया नहीं है। देखिए, नई जब इंडस्ट्री नहीं लग रही, नए सिवाय इसके कि जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो जमीनों पर लिया कब्जा, और वो भी पिछले 1-1.5 साल से वो भी काम, लेबर भी बेचारी वो भी फारिग है, लेबर के पास भी कोई काम नहीं है, प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं। और नौजवान आपके सारे, जितने नौजवानों से मैं बात करती हूँ, सारे तैयार बैठे कि हमने बाहर जाएं और हमें जॉब्स मिले, या फिर ऑनलाइन अगर कंपनीज में काम कर रहे हैं बेचारे पूरी रात, तो वो भी बाहर की कंपनीज हैं, वो भी कितने कर सकते, वो भी कितने कर सकते। देखिए ना, वो परसेंटेज के हिसाब से तो मैक्सिमम 2-3%। अच्छा, ये जो मैंने कहा कि इतना प्रोटोकॉल और रिटायर्ड अफसरान के इतने पैसे और गाड़ियां और चीजें साथ जाना, ये हमारा मुल्क ये बोझ बर्दाश्त करने काबिल है? एक तरफ तो कहते हैं सवाबदीदी फंड, इसमें सवाबदीदी फंड्स भी शामिल कर अभी एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी कौम मुश्किल दौर से, हम मुल्क मुश्किल दौर से, आप कुर्बानी दें, वो ये कहते हैं ना आपसे जी, हमसे कुर्बानी सारे ही मांगते हैं वो जुमला। अच्छा, अजहर साहब उन्हें कुर्बानी दे, तो उनसे आप और हम, शामी साहब और ये बैठे हुए सारे अपील करें ना कि आज के बाद कहें कि मुल्क बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, महंगाई बढ़ने के इम्कानात हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, ये जुमला नहीं बोलते हो। लेकिन दूसरी तरफ ये देखे ना कि उन्होंने तो अपना एक चाय का कप भी कम नहीं करते, उन्होंने तो उनको जरूरत नहीं है ना, सरकारी पैसा प्रोटोकॉल। और ये जो देखे ना, जितना प्रोटोकॉल है, क्या ये जो 20-20, 30-30 गाड़ियां चलती हैं गवर्नमेंट के, मुझे तो शर्म आ जाती है। IMF बैठा हुआ, लोग क्या कहें? गाड़ियों से भी गुजारा हो सकता है, क्यों नहीं? ये तो नहीं है कि नहीं हो सकता, इसीलिए। और रिटायर्ड लोगों को जब इतना बजट जाता है, रिटायर्ड लोग, सवाबदीदी फंड पर बात करें, सवाबदीदी फंड जो है इनको भी नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे मैं तो कहूँगा कि जो हालात हमारे मुल्क के हैं, इनमें तो मेरे ख्याल में हमें तरक्याती जो बजट है ना, इसको भी अब तरक्याती बजट में तरक्की कहीं भी नहीं होती, कहाँ होगी? जब आपने कर्ज लेके ही तरक्याती काम करने हैं तो उसका पहले जो हालात है उनको बेहतर करें। ठीक है, तरक्याती फंड जाता कहाँ, ये नहीं किसी को पता। हमारे दूसरे यूनिट्स हैं, PIA हो गई, स्टील मिल हो गई, इस तरह जहाँ के हम अरबों की सब्सिडी हर साल हमें देनी पड़ जाती है। मैं तो इसे कहता हूँ ये बाई फोर्स हमसे ले लेते हैं। तो इनसे भी अपनी जान छुड़ाएं किसी तरह, जो भी हो ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर ये भी है ना कि अगर मैं इस पे भी मुझे आता है कि आपकी एक प्राइवेट एयरलाइन तो चल रही है लेकिन PIA नहीं चल सकती। वो कैसे इसी मुल्क में चलती है? वही इस मुल्क में चल रही है ना, क्योंकि अगर PIA वो आपकी जाती मिल्कियत है इसलिए चल रही है, वो पाकिस्तान की जो होगी कौमी वो खराब हो। बजाय हम इसको कि ठीक है जी इसको प्राइवेटाइज करें, भाई आप उसके जो इतने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जो इतना कम कर लें, वोट लेने के लिए जब आप उसको कम कर लेंगे, वो सियासी भर्तियां थी सारी। देखें, एक चीज, एक अदारा है वो मर रहा है,
وہ مار دیں گے. کہتے ہیں کہ इसको ना बिल्कुल इसका सांस बंद कर देंगे, लेकिन अपने इस पे से वजन नहीं उठाएंगे. जो वजन के साथ मर रहा है, हम कहेंगे नहीं जी इसमें से वजन उठा के वो बच सकता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं वो वजन नहीं उठा सकते, हमारे वोट कम हो जाएंगे. चूंकि सियासी भर्तियां तो वो नाराज ही किसी को नहीं करना चाहते. जाए बाढ़ में शामी साहब बिजली ले ना ले आप इतना. आप क्या कहने वाले थे? मैं फिर फिदा की तरफ जाऊँ. डिस्कोर्स का ये है कि आपने वो डिस्कोर्स से जो बोर्ड थे वो सारे तोड़ दिए. अभी आपने चेयरमैन अपॉइंट कर दिए, कुछ के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए हैं, कुछ के आप चेयरमैन अपॉइंट हो रहे हैं, और आप इसके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. देखें, अगर तो ये प्रोसेस फेयर एंड फ्री हो और तो फिर तो कौम के लिए अच्छा है. अगर इसी तरह ही बेचना है जैसे हमने पीटीसीएल बेचा था और आज तक उसका पैसा, हम में ये अपनी हिम्मत नहीं है कि हम उनसे अपना पैसा मांग सकें. वो भी नहीं हो सकता. 800 मिलियन से ज्यादा अभी तक मेरे ख्याल में नहीं, 800 मिलियन डॉलर. जी. और कब से हमने बेचा हुआ है. कितना ये जब हकीकतें हम बयान करते हैं कितना अफसोस होता. इतनी भी हिम्मत नहीं है. हम ये कहते हैं कि जी पैसा हमारा है, उनके पास है, लेकिन हम उनसे मांग नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते कि यार ये हमारा खुदा का नाम मानो, तुमने बहुत इस्तेमाल कर लिया पैसा हमारा, अब हमें कमा के भी ले जा रहे हो, तुम्हारे डायरेक्टर्स भी फ्लोरिश कर रहे हैं, चीजें क्या वजह है जो इतना नहीं कर. बस देखें, मांगना हम मांग सकते हैं जब हमारी प्रॉपर्टीज वहां है, तो हम वहां से कैसे मांग सकते हैं ये बता देना. वो कशकोल लेके पैसे तो हम हर जगह मांगते हैं. वो वहाँ यही कहते हैं ना कि हमने कशकोल तोड़ दिया, तो कशकोल तोड़ दिया तो 11 वो बिलियन की आपकी प्रॉपर्टी तो 800 मिलियन जो आप कह रहे हो फंसा हुआ. अभी फंसा हुआ है ना, अभी उन्होंने देना है हमारा. तो इन्होंने जिसने हमारा पीटीसीएल लिया था, अभी उन्होंने पेमेंट करनी है हमारी, हम वो नहीं कर रहे और हम उनसे मांग भी नहीं रहे. वजह क्या ना मांगने की आप ख्याल में? मैं चाह रही हूँ ये नाज़रीन के ज़हन में भी सवाल आएगा ना. आपको साफ मालूम है कि दुबई में की प्रॉपर्टीज है, वहाँ किससे मांगेंगे? तो बस फिर मकसद फिर वही अपना ज़ाती मुफाद और वही आगे. फिदा, बिजली के बिल में क्यों इतने टैक्स हैं? आपकी भी मैं इस पर राय लूँगी, क्योंकि बिजली कट जाए तो वो बंदा फ़ौरन भागता है. बिल बेचारा खाना बंद कर देगा, बच्चे भूखे सुलाएगा तो बिल. और इन्होंने ये वीक पॉइंट पकड़ा हुआ है कि इसमें घुसाते जाओ हर चीज़. IPPs क्या क्या, नीलम जो प्रोजेक्ट जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता, PTV के बिल क्या, क्योंकि एक मजबूर आदमी को ब्लैकमेल करने का ये सबसे अच्छा तरीका. क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, बिजली पे जो 7 से 10 किस्म के टैक्सेस हैं, तो ये तो ऐसे है कि फिर मुझे तो ये नहीं समझ आती. हम कहते हैं कि हमारी कौम टैक्स नहीं देती, क्या ये हर बंदा जो कि बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा है ना? लोड शेडिंग पास जगहों पे इतनी होती है, तो जो बंदा बिजली का बिल दे रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा टैक्स दे रहा है. बिल्कुल ठीक. और उसके अलावा जो बंदा फोन इस्तेमाल कर रहा है वो भी तो बेचारा 25% टैक्स दे रहा है. जो भी चीज खा पी रहे हैं, हर चीजों में. ये तो दो मेन चीजें, कार्ड नहीं ले रहे हम फोन का, है ना, जो कि रजिस्टर्ड है. हाँ, फोन और बिजली का बिल ठीक है, रजिस्टर्ड है ना. ये तो हर बंदे को पता है कि ये जा रहा है, उसके नाम का बिल आता है दोनों में ही. वो उसके नाम का नंबर है और उसमें से उसका हर वक्त जब वो बेचारा लोड करता है तो 25 साथ ही कट जाता है, पहले ही कट जाता है. तो इसीलिए ये बिजली की जो प्राइसेस हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की हालत जो है वो आपने देखी बहुत है, बहुत हो रहा है, खाने के लिए पैसे बहुत ज्यादा बिल है भाई. ये तो ओवर बिलिंग आ जाती है. और फिर एक बंदा ने पिछले 3 महीने पहले या 2 महीने पहले बिजली इस्तेमाल करके उसने छोड़ दी, उसके बाद उसका वो जी एरिया वो जो एडजस्टमेंट वाली आ गई. वो एक अजीब सा सिस्टम है इस मुल्क में. इसमें गुंजाइश है. आपको पता चलता है कि इसमें गुंजाइश है कि इसमें किसी भी तरह बिजली, मतलब घर अंधेरा कर देना, अंधेर नगरी बनाने के लिए. अभी बातें मीडिया पे हो रही हैं कि उतनी जितनी हमने बिजली की इनकम है और जितना हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, तो वो तो मेरे ख्याल में आधे का फर्क है कि उतनी. हाँ, वो बड़े फैक्ट्स आ रहे हैं, वो अजीब से आ रहे हैं फैक्ट्स. हाँ. अगर वो हकीकत है तो ये शामी साहब से पूछते हैं. हाथ ही हो रहा है, वो क्या हाथ हो रहा है बिजली में? फैक्ट्स कुछ और आ रहे हैं हमारे सामने. क्या कौन से फैक्ट्स बताएं जी आप जरा. ये है ना कि कहते हैं जी आपका जो बिजली जो खर्च हुई है वो 1100 कुछ की हुई है, और आपके जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो तकरीबन कोई 2400 कुछ का किया है. इतना फर्क है. नहीं, वो कोई अगर वो कोई ऑथेंटिकेटेड बात है तो मैं तबसरा कर सकता हूँ. अगर आप जरा देखें, मैं तो शामी साहब जो मर्जी कहें, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी कौम जो है ना वो तालीम के बगैर
कोई कौम तरक्की नहीं कर सकी। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि और कम से कम और नहीं तो हम इस बजट में ही अपने तालीम के बजट को डबल कम से कम कर दें, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं तो वैसे कहता हूँ कि इसको 3 या 4 गुना बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर कम से कम डबल तो कर सकते हैं। खाते ही खुलने हैं जो शामी साहब कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। गोस्ट टीचर्स, गोस्ट स्कूल, वो आपकी बात ठीक है, उसको तो पहले जो अवेलेबल है उनको अपग्रेड। वो तो हम मिसमैनेज कंट्री हैं, हम इसको मैनेज प्रॉपर चीज़ों को कर लें तो वो तो हमारा बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मिसमैनेजमेंट